Next is question number 16. If you see the statement from the book, find the equation of curve passing through origin given the slope of tangent to curve at point xy is equal to sum of the coordinates of that point. Now what is given? It is given that equation of curve passing through origin having slope of tangent at xy. Slope will be dy by dx is equal to sum of the coordinate means x plus y. So your equation will be dy by dx is equal to x plus y. So you can solve this as a linear equation. It's quite simple. Then question number 17 is important question. Find the equation of curve passing through the point 0 2 given the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5. So now what is this? Find the equation of curve passing through 0 2. कर्व जो है वो 0 2 से पास होती है और सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी कि x प्लस वाई सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड dy by dx of the slope of tangent by 5. So our equation will become here dy by dx, let me suppose, let fxy be the curve and let xy be the point on the curve. So slope of tangent will be dy by dx. Now what is the given statement? Statement is the sum of the coordinate at that point, sum of the coordinate at that point x plus y at that point exceeds ज़्यादा है magnitude of the slope of tangent. Tangent slope of tangent is dy by dx, उससे 5 ज़्यादा है. So dy by dx plus 5 is equal to x plus y. Rearrange this, dy by dx minus y is equal to x minus 5. Now check y is equal to minus 1, p is minus 1 and q is x minus 5. Then integrating factor e raised to power integral p dx, e raised to power p है minus 1 dx, minus 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x is minus x. So solution is y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus constant. So y integrated factor is e raised to power minus x, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है x माइनस 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब ये अगर आप ध्यान से देखो प्रोडक्ट में आगे दोनों x के फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना है. सो वी विल यूज़ बाय पार्ट्स. बाय पार्ट में एक टर्म होती थी आइलेट. सो फॉर आइलेट इफ़ यू चेक कौन सा फंक्शन पहले लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड लेना है. सो हेयर यू विल चेक दैट द इफ़ यू सी हेयर एक्सपोनेंशियल लास्ट में लेना है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लास्ट में लेना है, एल्जेब्रिक पहले लेना है. सो x माइनस 5 जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया. ई रेज टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होगी ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन ऑफ इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी x माइनस 5 की 1 और ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज और ये वाला भी माइनस डी एक्स. सो नाउ ये माइनस यहाँ आ गया माइनस एक्स माइनस 5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन वो ये और ये माइनस प्लस हो गया प्लस कांस्टेंट. सो अगेन यू कैन कैलकुलेट माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 ये वाला ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज कॉमन प्लस सी. सो ये बन गया 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. ई रेज टू पावर एक्स जो इधर वाई के साथ चल रहा है वो अपॉन में आ गया. सो यहाँ से तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया. सो वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज कैंसल
ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज कैंसिल, यहाँ पे रह गया 4 माइनस एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर प्लस एक्स हो गया ऊपर जाके। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो x प्लस वाई, ये इधर आ गया x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर x. Now the question is, for a particular case, the curve is passing through point 0, 2. The curve is passing through point 0, 2. Now if the curve is passing through point 0, 2, so we can substitute the values. x, यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 2, 0, 2 minus 4 c e raised to power x 0. e raised to power 0 is 1, so c is minus 2. सो इस पे वैल्यूज पुट कर दो सी की, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, सी की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2 ई रेज़्ड टू पावर x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व. Now let we have a recap of all the chapter by doing some questions of miscellaneous exercise. You have to find the general solution. Equation is dy by dx 1 minus y square over 1 minus x square square root is equal to 0. So what is dy by dx? ये इधर आ गया with minus sign. Separating variables and integrate. y वाले एक तरफ कर लिए, x वाले एक तरफ कर लिए, dx 1 upon 1 minus y square with respect to y साइन इनवर्स y. इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x plus constant. So this is the required solution. Then question number 9 is find the particular solution. E raised to power 1 plus e raised to power 2x dy 1 plus y square e raised to power x dx when y is 1 x is 0. So वेरिएबल सेपरेट किए, इसको इधर ले गए तो dy के साथ आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, x वाला हो गया e रेज टू पावर x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विद माइनस साइन dx. इसकी इंटीग्रेशन होगी बेटा टेंजेंट इनवर्स y 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स y. इसकी इंटीग्रेशन जो है इस माइनस साइन को बाहर लिख लिया e रेज टू पावर x को पुट किया अगर t तो e रेज टू पावर 2x हो गया e टी स्क्वेयर, इंटीग्रेट किया 2 e रेज टू पावर 2x dx dt और यहाँ से e रेज टू पावर x dx इज dt. तो टेंजेंट इनवर्स y माइनस e रेज टू पावर x dx की जगह dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर. ये टेंजेंट इनवर्स t की इंटीग्रेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो है ये, प्लस कॉन्स्टेंट. सो टेंजेंट इनवर्स y टेंजेंट इनवर्स t इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू c. पुट द वैल्यू ऑफ t क्या था e रेज टू पावर x. सो टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर x इज इक्वल टू c. सो व्हेन y इज इक्वल टू 1 x विल बी 0. सो जहाँ जहाँ y को 1 पुट कर दिया और x को 0 पुट कर दिया, और पुटिंग दिस e रेज टू पावर 0 1 हो गया तो टेंजेंट इनवर्स पाई बाय 4, ये भी टेंजेंट इनवर्स 1 हो गया तो ये भी पाई बाय 4. पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ c. सो सोल्यूशन बन गया टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर x इज इक्वल टू पाई बाय 2. Now question number 10 is important, miscellaneous exercise. y into e raised to power x upon y dx is equal to e raised to power x upon y plus y square dx. You have to solve this equation. First you calculate dy by dx. ये ऑलरेडी इस टाइप का एक करवा चुका हूँ पीछे मैं. तो यहाँ पे dy by dx अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये होमोजीनियस नहीं बनती. सो फॉर द होमोजीनियस वी विल हैव dx अपॉन dy, ये वैल्यू पुट कर ली dx अपॉन वाई वाई स्क्वेयर बाई वाई ई रेज टू पावर x. dx बाई dy कैलकुलेट किया, वहाँ से ये होमोजीनियस बन गई. दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस. सो वी विल पुट x इज इक्वल टू वी वाई और x अपॉन वाई विल बी v. तो dx बाई dy इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, x की dx बाई dy v एज इट इज x y की 1 प्रोडक्ट रूल लगता है प्लस y एज इट इज v की विद रिस्पेक्ट टू y dv बाई dy.
सो वी विल पुट दिस वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई तो बन गया ई रेज टू पावर वी, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई हो गया वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई हो गया वी, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई हो गया ई रेज टू पावर वी प्लस वाई एज इट इज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहे हैं हम, तो ई रेज टू पावर वी इंटू वी, ब्रैकेट खोल दी बेटा, ये ब्रैकेट खोली तो ई रेज टू पावर वी इंटू वी कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर वी इंटू वी इज कैंसिल, सो ई रेज टू पावर वी डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई, ये कैंसिल हो गया, ये वाला वाई यहाँ आ गया नीचे, कैंसिल होकर 1 हो गया, सो ई रेज टू पावर वी डी वी बाई डी वाई इज 1. So now e raised to power dv is equal to dy. Now वेरिएबल सेपरेट किए यहाँ से, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन e raised to power v dv इंटीग्रेशन ऑफ dy, e raised to power v की विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन e raised to power v, y की dy की यानी कि 1 की विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर बी की वैल्यू होगी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, ये वाला एज इट इज प्लस सी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. लेट वी हैव ए कमर्शियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन. द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time. If the population of village was 20,000 in 1999, 25,000 in 2004, what will be the population of village in 2009? So let me see the solution. You are given population of a village increases continuously at rate proportional to number of its inhabitants. So let the number of inhabitant at any instant be y, and that instant is time t. Instant means at a particular instant, at a particular time. So now statement is the population of a village increases continuously at a rate proportional to number of inhabitants. So if y dy by dt is the rate is proportional to y. Now to remove the sign of proportionality, we put a constant dy by dt is equal to k into y, where k is constant of it, where k is any constant of proportionality बोल देते हैं इसको, constant of proportionality. Now dv by dy by dt is equal to ky, वेरिएबल सेपरेट किए, dy by y is equal to k dt, separating variables, and then integrating we will have integrating log of y is equal to 1 by y की इंटीग्रेशन log of y, k t की dt की इंटीग्रेशन means what we have did here dy by y integration is equal to integration of k dt, इंटीग्रेशन ऑफ k dt. तो 1 by y की log y, k कांस्टेंट है, t की dt की t प्लस कांस्टेंट. Now we are given in 1999 when the time t is 0, so y is 20,000. So we will put log of 20,000, k t is 0 c आ गया log of 20,000. In 2004 5 years हो गए, time is 5 year, so population is 25,000. So log of 25,000, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, log of 25,000 इज इक्वल टू k इंटू 5 प्लस सी. यहाँ से c की वैल्यू आ गई, c की 5k log of 20, c की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है log of 20,000. तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1 by 5 log of 5 by 4 on calculation.
लॉग ऑफ 5/4 ही कैलकुलेशन है 5k, सो k इज इक्वल टू 1/5 लो c और k की दोनों की वैल्यू आ गई। अब फॉर 2009 टाइम जो है t जो है वो 10 ईयर्स हो गया, 99 से 2009 10 ईयर्स, तो लॉग ऑफ y विल बी के टी प्लस कॉन्स्टेंट, इसमें वैल्यू पुट कर दी, लॉग ऑफ y अब निकालना है, सो लॉग ऑफ y एज इट इज, के की वैल्यू हमने निकाली है 1/5 लॉग ऑफ 5/4, log of 5/4 into time t is 10 years plus c की वैल्यू log of 20,000। सो ऑन कैलकुलेशन दिस log of y इज इक्वल टू, ये 5 2 से 10 हो गया, 2 जो है वो इसकी पावर बन गई 5/2 की, और log की प्रॉपर्टी लगा दी, log of m प्लस n, log of m इंटू n, ये सारा कैलकुलेट करके ये आ गया log of 31250। So log of y is log of 31,250. So y is 31,250. Thank you.